Today we can start a new topic, photochemistry. ठीक है, ये पेपर नंबर 13 जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें का ये टॉपिक है थर्ड, फोटोकेमिस्ट्री. हाँ, पहले इसका जो एक वी कैन सी फर्स्ट द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन with matter. So we know that when light radiations are allowed to fall on matter, some of radiation gets absorbed, some gets reflected, some transmitted, and some scattered. Understand? Like when light radiations are allowed to fall on matter, some of radiation gets absorbed, some gets reflected, some transmitted, and some scattered. उसमें से कुछ जो रेडिएशन रहेंगे वो एब्जॉर्ब होते हैं, some reflected, some transmitted, and some scattered. Various spectroscopic techniques are developed which depend upon absorption and scattering of light. Einstein in 1916 suggested various steps indicating interaction of radiation with matter. See this diagram. अभी ये diagram में this is nothing but your state first, या जिसको कहते हैं ground state, and state second, या we can say it is nothing but the excited state. तो ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग बट द एब्सॉर्प्शन, ये एब्सॉर्प्शन के लिए है. द सेकंड इज नथिंग फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशंस, और थर्ड जो है इट इज नथिंग बट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशंस. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस when light will fall upon the photon light, that this is nothing but in state first plus photon, it can give state second. ठीक है, तो on absorption of light photon, तो electron of that absorbing molecule, it may jump from ground state 1 to excited state second. Understand? So it depends upon that how many energy of light will be absorbed. तो मैटर जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में रहता है, मैटर इन द फॉर्म ऑफ सपोज मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें के जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट फोटॉन्स. ये जो फोटॉन्स है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो दैट्स व्हाई कैन गेट दिस दी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इसलिए अपनी को ये जो बताया है ये क्या है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो अपनी को मिला है. ठीक है, तो जब एक्साइटेड स्टेट में अगर मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, इट कैन इमिट्स द फोटॉन्स, इमिट्स एनर्जी. एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है एनर्जी एंड फोटॉन्स. ठीक है, दिस स्टेट सेकंड. अंडरस्टैंड? इट कैन कम्स टू स्टेट फर्स्ट विद इमिशन ऑफ फोटॉन. तो इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशंस. ठीक है, और इस थर्ड जो आपको दिख रहा है स्पेक्ट्रम, इट इज फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशंस. यानी कि सेकंड जो एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल रहेगा, इट कैन ऑब्जर्व फोटॉन्स and come to the ground state 1 with emission of more photons. So it is known as the spontaneous emission. इसको spontaneous emission ऐसा कहते हैं. It has been assumed that interaction of light with matter is responsible for origin of light. It has been assumed that interaction of light with matter is responsible for origin of light. In the primitive earth conditions, radiations from the sun were the only source of energy. ठीक है, यानी कि पहले क्या था, रेडिएशन फ्रॉम सन जो रहते थे, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. वो खाली एक ही एनर्जी का सोर्स था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. दे आर द मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी. द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट with matter help us in understanding phenomenon like photosynthesis, photoaxis, photodynamic action, vision, mutagenic effect of light. तो ये जो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ये जो है इसमें स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, इट कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, या फोटो एक्सिस है, फोटोडायनेमिक एक्शन है, विजन है,
या म्यूटेजेनिक इफेक्ट ऑफ लाइट। तो ये स्टडी करने के लिए ये जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर है इसका यूज किया जाता है। Certain chemicals change their color when exposed to suitable radiations and reverse when the irradiation source is removed. These are known as photochromic materials and are used in sunglasses. Abhi, there are certain chemicals, so they can change their color when exposed to suitable radiations and reverse when the irradiation source is removed. तो दीज आर नोन एज दी फोटोक्रोमिक मटेरियल्स। ऐसे जो मटेरियल्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, फोटोक्रोमिक मटेरियल्स कहा जाता है। एंड जनरली दे आर यूज्ड इन सन ग्लासेस। जैसे सन ग्लासेस में क्या रहता है, अगर धूप अगर उस पर गिरती है सन ग्लासेस पर, व्हाट हैपेंस, दे कैन चेंज देयर कलर। उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनमें के लाइट रिमूव किए करते हैं, सन लाइट रिमूव हो जाती है, अगेन दे विल कम टू देयर ओरिजिनल कलर। Reactions involving combination, decomposition, polymerization, isomeric change, oxidation, and reduction can be brought about by exposure to the light of radiations. There are many reactions जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, पॉलीमराइजेशन है, आइसोमेरिक चेंज है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो ये जो रिएक्शंस है दे आर आल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। ये जो है लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं। फोटोकेमिस्ट्री की यानी कि व्हाट इज मीन बाय फोटोकेमिस्ट्री, क्योंकि आपके टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज the science of chemical effects of radiation whose wavelength lies in the visible and UV region। visible और UV जो region है, it is nothing but 800 to 200 nanometer। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या रहेगा फिर, फोटोकेमिस्ट्री is defined as the science of the chemical effects of radiation whose wavelength lies in the visible and UV region, that is nothing but the 800 to 200 nanometer। और the second definition, photochemistry जो है, it is nothing but the branch of chemistry which deals with the study of photochemical reactions is called photochemistry। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, एकदम सिंपल है। इट इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of photochemical reactions is called photochemistry। फोटोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है और जिसमें क्या की स्टडी की जाती है, फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस है उनकी स्टडी की जाती है। उसका अपन क्या करना है, इट इज नथिंग बट फोटोकेमिस्ट्री, उसका अपन फोटोकेमिस्ट्री ऐसा कहते हैं। ठीक है, वी कैन सी सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस या इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, किसको कहना है फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल प्रोसेस यानी कि क्या, the reaction which take place by absorption of the visible and ultraviolet light radiation is called photochemical reaction। ठीक है, reaction which take place by absorption of visible or ultraviolet light radiation is called a photochemical reaction। विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस जो है 200 टू 800 नैनोमीटर वो उनकी रेंज रहती है। तो जो reaction which take place by absorption of visible and ultraviolet light radiation is called photochemical reaction या photochemical process ऐसे कहते हैं। In such process the absorbed light energy is first stored in the molecule and then it is further used to bring about the reaction। जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, the absorbed light energy is first stored in the molecule and then it is further used to bring about the reaction। Understand? समझ में आया कि फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी क्या रहेगा, reaction which takes place by absorption of visible and ultraviolet light radiation is called a photochemical reaction। और ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, the absorbed light energy is first stored in the molecule and then it is further used to bring about the reaction। इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं क्या कि जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है।
एक जस्ट सिंपल एग्जांपल है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन in gaseous form, chlorine is also in gaseous form. So this reaction is take place in presence of light, and we can get here HCl in the gaseous form. ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में नहीं होती रिएक्शंस। एंड वी कैन गेट हियर दी HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैसेस है, क्लोरीन गैसेस है, एंड वी कैन गेट HCl, hydrochloric acid, the gaseous form. So this reaction take place in presence of light. या अदर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो सभी को पता है, दैट इज नथिंग बट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जो प्लांट में होती है, ठीक है, जिसका बॉटनी है उनको पता होगा, या जिसका बॉटनी नहीं है लेकिन ऐसा 10th या 12th तक बायोलॉजी था, उनको भी पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो रहती है इट टेक प्लेस इन प्लांट्स, ना प्लांट्स में होती है। एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्या प्रोसेस है, 6CO2 प्लस 6H2, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर अपन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ये ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट रहता है, and this reaction takes place in presence of light. So we can get here C6H12O6 plus 6O2, O2 यानी कि ऑक्सीजन, और this C6H6O6 it is nothing but the carbohydrate, ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो in this reactions we can get here the carbohydrate, and they can prepare their food, plants they can prepare the food in presence of light। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है प्लांट में की, ये लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। दिस प्रोसेस डज नॉट टेक इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये दोनों भी जो एग्जांपल है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के है, बिकॉज हियर लाइट इज एसेंशियल। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या रहता है, लाइट जो है वो जरूरी है। विदाउट लाइट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बगैर लाइट की ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में ये लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, CO2 या वाटर, नाइदर CO2 नॉर वाटर। तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल रहता है ग्रीन प्लांट में का, इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट, वो क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। एंड वी कैन गेट हियर दिस इज 6H12O6 प्लस 6O2, तो वी कैन गेट हियर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है थर्मल प्रोसेस, या जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। थर्मल प्रोसेस और डार्क रिएक्शन, या थर्मल रिएक्शन या फिर थर्मल प्रोसेस, रिएक्शंस which are caused by heat and in absence of light are called thermal reactions। ठीक है, the reactions which are caused, the reactions which are caused by heat and in absence of light are called thermal reactions। जो reactions लाइट के absence में होते हैं, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ जनरल हीट, हीट लेकिन उनको जरूरी है, इसलिए उनको अपन कहते हैं थर्मल। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन H2 plus I2 it gives twice HI। दिस रिएक्शन इज आल्सो ए थर्मल प्रोसेस, ये जिसको अपन कहेंगे डार्क रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस 3H2 it can gives ammonia। तो both are the examples of thermal process or dark reaction। So the reaction the reaction which are caused by heat and in absence of light are called thermal reaction। The reactions which are caused by heat and and in absence of light are called thermal reactions। Reactions between H2 and I2 ये एक एग्जांपल है, और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, then we can see the difference between photochemical reaction and thermal reactions। photochemical reaction और thermal reaction में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो photochemical reaction यानी कि क्या रहेंगे, these reactions involve
absorption of light radiation. अंडरस्टैंड? थर्मल जो रिएक्शन रहेंगे, फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस रहेंगे, these reactions involve absorption of light radiations. While thermal reactions कैसे रहेंगे? These reaction involve absorption or evolution of heat. Thermal reaction, these reactions involve absorption or evolution of heat. अंडरस्टैंड? इनको एक तो हीट की जरूरत रहेगी, एक तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे या फिर इवॉल्व करेंगे, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या है? लाइट जो रहती है वो जरूरी है. विदाउट लाइट दिस रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल. Come to second point, photochemical reaction. The presence of light is the primary requirement. The presence of light is the primary requirement for reactions to take place. Photochemical reaction में light जो रहेंगी, it is the primary requirement for the reactions. ठीक है? While in thermal reaction, these reactions can take place in dark as well as in light. थर्मल जो रिएक्शंस रहते हैं वो डार्क में भी होते हैं और लाइट में भी होते हैं. उनकी लाइट रही तो भी चलता है, नहीं रही तो भी चलता है. लेकिन फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस रहेंगे, लाइट इज एसेंशियल. लाइट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट जो रहेगी वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर हैज ए very little effect on the rate of photochemical reaction. टेम्परेचर का बहुत कम असर गिरता है रेट ऑफ रिएक्शन पर. लेकिन थर्मल जो रिएक्शंस है, नाम ही थर्मल है, तो टेम्परेचर हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन. टेम्परेचर हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मल रिएक्शंस. नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. फॉर फोटोकेमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस may be positive or negative. Change in Gibbs free energy for photochemical spontaneous reactions may be positive or negative. लेकिन थर्मल जो रिएक्शंस रहते हैं इनमें डेल्टा जी जो रहेगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर थर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. डेल्टा जी कैसा रहता है? ऑलवेज नेगेटिव रहता है थर्मल रिएक्शन में. वहीं फोटोकेमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव भी रह सकता है या फिर नेगेटिव भी रह सकता है. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव. फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव. व्हाइल इन थर्मल रिएक्शन थर्मल एक्टिवेशन इज नॉट सिलेक्टिव इन नेचर. थर्मल एक्टिवेशन जो रहेगा इट इज नॉट सिलेक्टिव इन नेचर. लास्ट पॉइंट रहेंगे इसमें का, फॉर एग्जांपल इन फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, या फिर आप वो भी एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज नॉट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. या थर्मल रिएक्शंस में क्या एग्जांपल रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, या फिर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है. ठीक है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल रिएक्शन. ये थर्मल रिएक्शन के एग्जांपल रहेंगे. तो ये जो क्वेश्चन आता है ये 10 मार्क के लिए आता है. दे कैन आस्क गिव द डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन. डिफाइन photochemical reaction and thermal reaction and give the difference between photochemical and thermal reactions. तो ये सिर्फ जो पॉइंट है वो लिखना जरूरी है फॉर 10 मार्क्स. एकदम सिंपल है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या रहेगा? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस. थर्मल में क्या रहता है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एब्सॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट. ठीक है? Second point, the presence of light is primary requirement for reaction to take place. Photochemical reaction में क्या है? Light जो रहती है, it is the primary requirement for the reaction to take place. लेकिन thermal में क्या रहेगा? The reactions can take place in dark as well as in light. उनमें light रहो या मत रहो, reaction तो होनी चाहिए thermal में. Photochemical में third point क्या है? Temperature has very less effect on rate of photochemical reactions. बहुत कम असर गिरता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर का.
लेकिन वही थर्मल रिएक्शन है तो टेम्परेचर हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट था डेल्टा जी। डेल्टा जी यानी कि क्या रहता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। फॉर फोटोकेमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव रह सकता है, लेकिन थर्मल रिएक्शन में डेल्टा जी कैसा रहता है, इट इज ऑलवेज निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव। फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव, लेकिन थर्मल रिएक्शन में क्या रहता है, थर्मल एक्टिवेशन इज नॉट सिलेक्टिव इन नेचर। और लास्ट जो पॉइंट है वो रहेगा एग्जाम्पल का। तो जैसे मैंने आपको कहा फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप कोई भी एग्जांपल दे दो, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे दो, या फिर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। लेकिन वही थर्मल रिएक्शन में अगर आप देखते हैं तो थर्मल में एक तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विथ रिएक्शन, रिएक्शन के साथ बता दो, या फिर रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2 टू फॉर्म HI, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन। यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क द क्वेश्चन।